आसनसोल के 56 नंबर वार्ड में पिछले कई दिनों से पानी की भारी किल्लत से लोग परेशान हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पानी की समस्या बढ़ती जा रही है, जिससे उनके जीवन में असंतुलन आ गया है। यह किल्लत विशेष रूप से तब और गंभीर हो गई जब उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय पार्षद ने बीजेपी विधायक के आगमन के कारण जानबूझकर जल आपूर्ति रोक दी है। सड़कों पर उतरे स्थानीय लोग न केवल अपनी आवाज उठाना चाह रहे थे, बल्कि उन्होंने इस मुद्दे की गंभीरता को समझाते हुए चित्रा मोड़ इलाके की सड़क को करीब 30 मिनट तक जाम कर दिया। हाथों में बीजेपी का झंडा और पानी भरने के बर्तन लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अपनी नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि पानी की कमी ने उनके दैनिक जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है और उन्हें जीवन स्रोत पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए 56 नंबर वार्ड की तृणमूल पार्षद श्रावणी विश्वास ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि जल आपूर्ति में बाधा केवल तकनीकी कारणों से हुई थी। उन्होंने जानकारी दी कि इलाके में पानी के टैंकर भेजे गए थे, लेकिन तकनीकी कार्यों के चलते जल आपूर्ति अस्थायी रूप से बाधित हो गई थी। पार्षद ने यह भी बताया कि उन्होंने खुद जाकर लोगों को स्थिति की जानकारी देने का प्रयास किया। स्थानीय निवासियों की लगातार बढ़ती शिकायतें और निरंतर प्रदर्शन ये दर्शाते हैं कि पानी की समस्या एक गंभीर मुद्दा है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जरूरत है कि प्रशासन इस गंभीर संकट का समाधान निकाले, जिससे स्थानीय लोग आवश्यकतानुसार पानी प्राप्त कर सकें। प्रदर्शनों की स्थिति ने स्पष्ट किया है कि यह मुद्दा केवल जल आपूर्ति का नहीं, बल्कि लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाला है। आसनसोल के 56 नंबर वार्ड में जल संकट का मुद्दा अब तूल पकड़ चुका है, जहां नागरिकों की परेशानियों का समाधान होना आवश्यक है। समस्याओं का समाधान न होने पर लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। पानी की इस किल्लत को समाप्त करना सरकार और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है, ताकि क्षेत्र की समस्याओं को शीघ्रता से हल किया जा सके। কিসের জন্য ঢুকলো? আমি ওই জন্যই জল বন্ধ করেছি। অগ্নিমিত্র আসাতে আমাদের জল বন্ধ হয়ে গেছে। আমাদের যেটুকু গাড়ির জলটা পেয়েছিলাম ওটা আমাদের আজ 5 দিন থেকে বন্ধ আছে। অগ্নিমিত্র কেন এসেছিল? অগ্নিমিত্র ওই যে কীর্তনে আমরা তাদের বাড়িতে ডোনেশন করতে গেছি। আমরা তো জানি না যে ও বিজেপি না টিএমসি না কাউন্সিলর, আমার কাছে সবাইকার কাছে চেয়েছি, তো ও দিতে এসেছে, কীর্তন শুনেছে, দিয়েছে, চলে গেছে। শাওনিকে ডাকা হয়েছে, শাওনি আসে নাই। শাওনি কি তৃণমূলের? হ্যাঁ ভैया কাউন্সিলর। আপনারা বলেছিলেন যে জল পাচ্ছেন না 5 দিন ধরে? আমরা কাউন্সিলরকে বলছি, কাউন্সিলর বলছে কি আমি দেখছি, তো দেখছি যে বলছে আজ 5 দিন হয়ে গেল, আবার বলছে 26টা ঘর আমার কাছে এসো তবে তোমাদেরকে জল দিব। কে বলছে এটা? এটা শাওনি আমাদের কাউন্সিলর। ও বলছে আমার ওয়ার্ডে ঢুকলে কেন, অগ্নিমিত্র ঢুকলে কেন আমার ওয়ার্ডে, আমি তোমাদেরকে জল দিব না। মারামারি করতে চাইছে, হাত তুলছে। শাওনি আমাদের যে কাউন্সিলর। কতদিন ধরে জল বন্ধ আছে? 5 দিন। তাহলে আমরা খাবো কি? আমাদের তো এখানে কল নাই, আমাদের জল নাই। কতগুলো ঘর আছে আপনাদের এখানে? আমাদের 54টা ঘর আছে। এখন জল কিভাবে জোগাড় হচ্ছে? জল ওই আমরা সাইকেলে করে আনছে আমাদের ছেলেরা। এটা কি আগে কি ট্যাঙ্কারে জল দিত আপনাদের? হ্যাঁ ট্যাঙ্কারে জল দিচ্ছে 3 বছর। হ্যাঁ, আমাদের জলের প্রবলেম। আমরা একটা মানে আগে আমাদের আজ 4 বছর থেকে জল দিচ্ছিল আমাদের কাউন্সিলর, কিন্তু আমরা মানে পয়লা বৈশাখে আমরা কীর্তন করেছিলাম হরিনাম। তারপরে আমরা মানে কীর্তন করেছিলাম, তো আমরা আমাদের কাউন্সিলরকেও আমন্ত্রণ করেছি, আমাদের মেয়র সাহেবকেও আমন্ত্রণ করেছি, আমাদের দক্ষিণের যে মানে বিধায়ক যে এমএলএ অগ্নিমিত্রা পল তাকেও আমন্ত্রণ করেছি। কিন্তু দেখলাম যে আমাদের না কাউন্সিলর এসছে, না আমাদের মেয়র সাহেব এসছে। আমাদের অগ্নিমিত্রা পাল উনি এসেছিলেন কীর্তন শুনতে এসেছিলেন, তো কীর্তন শোনার পরও চলে গেলেন। এখানে কোনো পার্টির কোনো গল্প করেনি, না কোনো করছে। ও কীর্তনে নিয়ে বলেছে, ভগবানের নিয়ে বলেছে যে না আপনারা এই উৎসাহ যে করছেন অনেক ভালো করছেন। হ্যাঁ, তো তারপর দিন থেকে দেখছি যে আমাদের মানে 2 ট্যাঙ্কার করে জল পাঠায় আমাদের পাড়াতে, কিন্তু এক ট্যাঙ্কি পাঠাচ্ছে, এক ট্যাঙ্কি আমরা নিচে পাড়ায় থাকি, 26টা মানে ফ্যামিলি, ওই পাড়াতে পাঠাচ্ছে না। আমরা তা আজকে ওকে ডাকলাম কাউন্সিলরকে, কাউন্সিলর এলো, বলছে তোমরা আমার ওয়ার্ডে আমার এলাকায় কি করে বিজেপির লোক অগ্নিমিত্রা পল কি কার সাহসে ঢুকলো কেন, কিভাবে ঢুকলো? কীর্তনের জন্য ডেকেছিলাম। কীর্তনের জন্য তো কাউন্সিলরকেও ইনভাইট করা ছিল, কাউন্সিলর আসেনি। মেয়রকেও ইনভাইট করা ছিল, মেয়রও আসেনি।
কোনো কারণবশত মেয়র সাহেব আসতে পারেনি শরীর অসুস্থতার কারণে, কিন্তু কাউন্সিলর আসেনি। তো এটা কি কীর্তন হওয়ার জন্য বিধায়ক এলো তাই বন্ধ হয়ে গেল? হ্যাঁ, এটা আমরা যতটা কারণ বুঝতে পারছি যে বিধায়ক আসার কারণে জলটা আমাদের বন্ধ হয়েছে। পুলিশ এসছে? পুলিশ এসছে, পুলিশ 2 গাড়ি পুলিশ এসছে। আপনাকে ডেকেছিল? আমার নামে কাউন্সিলর কমপ্লেন করেছে, আমার নামে কমপ্লেন করেছে এবং আমার নামে 2টো পুলিশ গাড়ি ভ্যান ডেকেছে আমাকে উঠাবার জন্য। ধর্মের নামে হাওয়া দিয়ে বেড়ায়। আর 365 দিন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আমাদের পরিষেবা দিয়ে বেড়ান। কোনো জায়গায় কি পরিষেবা দেন উনি? অগ্নিমিত্রা পাল, আমরাই দিই পরিষেবাটা। তো কোনো কারণে এটা বন্ধ হয়েছে, আজকে থেকে আবার সেই ট্যাঙ্কার জল চলে গেছে। না, ওটা কি কারণে বন্ধ? কারণ কর্পোরেশন বলছে যে কেন বন্ধ হয়েছে কর্পোরেশন জানে না। কর্পোরেশন জানে না, ঠিক আছে, তাই না? যেখানে আমি তো আপনাদেরকে ওখানকার কাউন্সিলর, স্থানীয় কাউন্সিলর হয়ে জানালাম যে ওখানে ট্যাঙ্কারের কোনো একটু অসুবিধা হয়েছিল, যার জন্য একটা ট্যাঙ্কার যাচ্ছিল, জল নীল ছিল না, একটা ট্যাঙ্কার যাচ্ছিল। এটা আপনারা ভালো করে বুঝুন, একটা ট্যাঙ্কার যাচ্ছিল, জল নীল হয়নি। কি অসুবিধা হয়েছিল সেটা কি কর্পোরেশনকে আপনি জানিয়েছেন? এই কর্পোরেশন তো এইমাত্র খুললো, কর্পোরেশনের কাছে তো আমি জানাতে এসেছি। কদিন ধরে বন্ধ ছিল? ছুটি 2-4 দিন ছুটি যে কদিন 2-4 দিন ছিল সেই দিনই। কিন্তু আমার একটা ট্যাঙ্কার গেছে, জল গেছে, ঠিক আছে। ওরা অভিযোগ করছে যে ওরা বিজেপি করে বলে আপনি জল বন্ধ করে দিয়েছেন। এটা ভুল ধারণা। বিজেপি সরকারের কাজই হচ্ছে ধর্মের নামে হাওয়া বাতাস দেওয়া। আর আমাদের পরিষেবাটা দেয় আমাদের মমতা ব্যানার্জি, আমাদের আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মেয়র বিধান উপাধ্যায়। আমরা সেই পরিষেবা, সেই বিজেপি করুক, সিপিএম করুক, কংগ্রেস করুক, আমরা সেটা দেখে চলি না। আমাদের পরিষেবা দেওয়ার কাজ, আমরা পরিষেবা দিয়ে যাব। পরিষেবা দেননি বলে তো আজকে রাস্তা অবরোধ হলো। পরিষেবা দেননি কি করে হবে? আমার কি ওখানে জল যায়নি? আমার তো ওখানে জল গেছে। বারবার আপনাদের বলছি, জল 1 ট্যাঙ্কি করে যেতে, যেখানে 2 ট্যাঙ্কি যায় সেখানে 1 ট্যাঙ্কি গেছে, 1 ট্যাঙ্কি আজ গেছে, আজও আমার জল গেছে। যদি আমাদের ওখানে হতো, রেলের জায়গাতে আমরা পাইপলাইন করছি, রেলের জায়গাতে আমরা 2টো স্ট্যান্ড বাই কল করেছি, সেখানে কলের জল শুরু হয়নি বলে আমরা ট্যাঙ্কার পাঠিয়ে জল চালাচ্ছি। ওরা অভিযোগ করছে যে আপনি কি পুলিশ পাঠিয়েছিলেন ওইখানে নাকি? না, ওখানে পুলিশরাও ওরা নিজেদের মধ্যে প্রচণ্ড কেওয়াস করছিল, সেখানে জিনিসটাকে হালকা করার জন্য পুলিশ দিয়ে সবাইকে নিজের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। सोमवार को आसनसोल के कुल्टी और हीरापुर इलाके में एनफोर्समेंट ब्रांच ईबी ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई को अंजाम दिया। इस अभियान में टाटा कंपनी के नाम पर अवैध रूप से बेचे जा रहे नमक के एक बड़े स्टॉक को जब्त किया गया। यह विशेष छापेमारी स्थानीय पुलिस की सहयोग से की गई, जिसने इस गुप्त ऑपरेशन को सफल बनाया। एनफोर्समेंट ब्रांच के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी कि उन्हें गुप्त सूत्रों से सूचना मिली थी कि कुल्टी और आसपास के क्षेत्रों में ब्रांडेड नमक का अवैध व्यापार हो रहा है। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करने का निर्णय लिया। छापेमारी के दौरान जब्त किए गए नमक ने स्थिति की गंभीरता को दिखाया। जब्त किए गए नमक की बिक्री बाजार में नियमों का उल्लंघन करते हुए की जा रही थी और इसके पीछे एक संगठित रैकेट के शामिल होने की आशंका है। अधिकारी ने बताया कि इस मामले की गहन जांच की जा रही है ताकि स्पष्ट हो सके कि यह नेटवर्क कैसे काम कर रहा था और क्या इसे नियंत्रित करने के लिए और भी कदम उठाने की आवश्यकता है। ईबी ने आश्वासन दिया कि ऐसी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा। अधिकारी ने कहा कि जिले के अन्य संवेदनशील इलाकों में भी छापेमारी की कार्रवाइयां जल्दी ही की जाने वाली हैं। उनका लक्ष्य स्थानीय बाजार में शुद्धता और कानून के पालन को सुनिश्चित करना है। जब्त किए गए नमक को सुरक्षात्मक निगरानी के तहत रखा गया है और इस संबंध में संबंधित पक्षों से पूछताछ की जा रही है। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे केवल अधिकृत दुकानों से ही ब्रांडेड खाद्य उत्पाद खरीदें। यदि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि का सामना करें तो उसे तुरंत पुलिस या प्रशासन को सूचित करें। इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि अधिकारियों ने अवैध व्यापार के खिलाफ अपनी सख्ती बढ़ा दी है और यह निरंतर प्रयास स्थानीय व्यापार और उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। एक स्वस्थ बाजार के निर्माण के लिए सभी को सहयोग करना चाहिए। क्या हुआ? हमें कुछ नहीं मालूम। उन लोग आए, बोले टाटा नमक रखते हैं, हम लेकिन रखते हैं, एक तो बोरा खुला हुआ है, तो कहाँ से लेते हैं? हम नियामतपुर से लेते हैं। बस टाटा नमक उठाएं, फिर सीजर लिस्ट काट के हमको दे। क्या बोले वो लोग? कहाँ से आए थे या कौन लोग थे? कौन आया, कहाँ से आए, हम नहीं पूछे। साथ में कौन लोग थे? पुलिस भी थे बाहर का। जो आप लोग आपके दुकान में रेड किया, अपना क्या परिचय वो लोग दिए? कोई परिचय नहीं दिया।
तो ऐसा माने आप लोग जो माल लेके आते हैं आप लोग क्या पहचान पाते हैं कौन असली नमक है या- ना हम लोग नहीं पहचान पाते। तो फिर सामान सब आता है नियामतपुर से आया है सामान। 2 बोरा नमक आया था, 1 बोरा बिक्री हुआ है और 1 बोरा में 2 पीस कम था मेरा पास। रानीगंज के मंगलपुर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित जय बालाजी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड लौह इस्पात कारखाने में एक दुखद हादसा घटित हुआ जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। यह घटना 22 वर्षीय विकास मुंडा उर्फ लड्डू के साथ हुई, जो आयरन केशर विभाग में सुपरवाइजर के रूप में कार्यरत था। रविवार को जब वह अपने कार्यस्थल पर था, एक कोयला लदा ट्रक अचानक उसे टक्कर मार देता है। यह लोहे के पहिए के नीचे आकर उसकी जान ले लेता है, जिससे आसपास के मजदूरों और अधिकारियों में अफरा तफरी मच जाती है। घटना की जानकारी तुरंत कारखाने के ट्रेड यूनियन नेताओं और वक्ता नगर ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों को दी गई। स्थिति को देखते हुए इन नेताओं ने मृतक के परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की और ट्रक चालक और कारखाना प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की। स्थानीय तृणमूल नेता जयदेव खान ने कहा कि इस दुखद घटना के पीछे की सच्चाई उजागर होनी चाहिए और जिसने भी इस हादसे के लिए जिम्मेदार हो उन्हें सख्त सजा दी जानी चाहिए। यह एक गंभीर मामला है जो सिर्फ एक जिंदगी का नहीं बल्कि कई परिवारों का भविष्य भी प्रभावित करता है। उक्त समिति ने यह भी बताया कि सोमवार को शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद ही मृत्यु के सही कारण की जानकारी स्पष्ट होगी। उनके मुताबिक यह घटना लापरवाही का परिणाम हो सकती है, न कि केवल एक दुर्घटना। जब भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो यह साफ होता है कि कारखाना प्रबंधन की उदासीनता और सुरक्षा प्रोटोकॉल के उल्लंघन के कारण ये हादसे होते हैं। उन्होंने यह पुष्टि की कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए कारखाना प्रशासन को कठोर कदम उठाने चाहिए। घटना देखिए सर, लगभग जहाँ पे गाड़ी पलटी मारा है और जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, जहाँ एक्सीडेंट का जहाँ पे मेन उसका वहाँ पे बॉडी जहाँ पे होना चाहिए था वहाँ से तो उठा लिया है बॉडी, लेकिन वहाँ पे पूरा ऐसा उठाया है कि वहाँ पे मतलब कि वहाँ पे कोई भी निशान पुलिस वहाँ पे नहीं रखा है। मान लीजिए अगर कहीं एक्सीडेंट होता तो वहाँ पे कुछ तो मार्किंग रखेगा ना कि यहाँ पे बॉडी हम लोग उठाया है, कुछ तो पेपर वर्क हुआ होगा, कुछ नहीं है उन लोगों के पास में। ठीक है, पुलिस बोल रहा है हालांकि हम लोग पेपर वर्क किए हैं लेकिन दिखा नहीं रहा है। ठीक है, उसके बाद से सर सबसे बड़ा बात है एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी आदमी यहाँ पे नहीं है, कोई भी आदमी नहीं। हम लोग जब पूछ रहे हैं कि कोई तो होगा, मैनेजर होगा, ऑनर होगा, कोई तो होगा। चलिए ठीक है, ऑनर यहाँ पे एट अ टाइम प्रेजेंट नहीं है, लेकिन मैनेजर तो होगा। कुछ नहीं बोल रहा, पुलिस वहाँ पे खड़ा है और उल्टा बोल रहा है कि अगर मान लीजिए कि हम लोग अगर प्रोडक्शन बंद कराते हैं, अगर सर किसी का जान से बढ़कर प्रोडक्शन है क्या? अगर मान लीजिए किसी का जान चला गया, आप लोग दो मिनट के आप लोग कंपनी बंद करके किसी को यहाँ पे किसी के लिए यहाँ पे खड़ा आप लोग नहीं कर सकते हैं। पुलिस इतना तो पुलिस का अथॉरिटी होना चाहिए। क्या लग रहा है इसको लीपापोती करने का कोशिश किया जा रहा है? लीपापोती तो हो चुका है सर, आप देखिएगा सर। अब जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे तो कुछ तो हल्का से सिर्फ ब्लड गिरा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि जेसीबी से उठा लिया है। कुछ वहाँ पे मार के नहीं, हल्का से सिर्फ ब्लड का स्पॉट है बस, और कुछ उसके अलावा नहीं है। किसी फैमिली मेंबर को किसी को इन्फॉर्म नहीं किया गया है, पुलिस आया है उठा के लेके चला गया है, ऐसा थोड़ी होता है सर। आप तो किसी को इन्फॉर्म करेंगे ना। यहाँ पे सामने देखिए सर, इधर कैमरा घुमा सकते हैं, यहाँ पे सामने सीसीटीवी फुटेज हम लोग मांग रहे देखने के लिए, फुटेज देखने नहीं दिया जा रहा। ये घटना कितना बजे हुआ सर? घटना देखिए सर एग्जैक्ट तो हम बता नहीं सकते, जैसा कि बताया जा रहा है सर लगभग 8 साढ़े 8 बजे का घटना है ये। 7 से 8 बजे के बीच मान के चल सकते हैं। हम लोग को 9 बजे खबर मिला कि ऐसा बात है, तो हम लोग सब आए हुए यहाँ पे देखने के लिए। लड़का का क्या नाम है, कितने दिन से नौकरी करता था? लड़का सर देखिए फरवरी में उसको ज्वाइनिंग यहाँ पे हुआ था, फरवरी में। और लड़का का नाम है विकास कुमार और उसका सर हम लोग से प्यार से उसको लड्डू हम लोग बुलाते हैं। आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में अवैध तरीके से पार्किंग संचालन को लेकर कांग्रेस नेताओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने नगर निगम प्रशासन पर आरोप लगाया है कि पार्किंग व्यवस्था में गंभीर अनियमितताएं चल रही हैं। प्रशनजीत पोयतुंडी और शाह आलम जैसे नेताओं का कहना है कि पार्किंग के नाम पर जो धनराशि जुटाई जा रही है वह केवल कुछ विशेष व्यक्तियों के माध्यम से संचालित हो रही है। कांग्रेस नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि नगर निगम ने टेंडर प्रक्रिया के जरिए उचित कदम उठाने के बजाय केवल कुछ लोगों से पैसे जमा कराने का काम किया है। इससे स्पष्ट होता है कि पार्किंग के स्थानों पर नियमित रूप से अवैध वसूली हो रही है। नेताओं ने कहा कि जागरूक नागरिकों की भावनाओं और नगर निगम के नियमों की अवहेलना कर सार्वजनिक स्थानों पर खुलेआम लूट मचाई जा रही है। नेताओं ने आरोप लगाया कि इस गंभीर स्थिति पर नगर निगम प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है। जब नागरिकों के पैसे की बात आती है तो एक जिम्मेदार प्रशासन की भूमिका बनती है कि वह पारदर्शिता और जिम्मेदारी से कार्य करे, परंतु इस मामले में ऐसा कुछ भी नहीं दिखता। सोमवार को इन कांग्रेस नेताओं ने मेयर विधान उपाध्याय को एक लिखित शिकायत सौंपी,
जिसमें अवैध पार्किंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। कांग्रेस नेता इस बात की चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर समय रहते उचित कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन का सहारा लेंगे, यह स्पष्ट करते हुए कि राजनीति में ऐसी अनियमितताओं का सामना शासन प्रशासन को करना ही पड़ेगा। इस समय नागरिकों की सुरक्षा और उनके पैसे की जिम्मेदारी उठाना नगर निगम की प्राथमिकता होनी चाहिए। पार्किंग में बार बार देखा जाता है, जब भी टेंडर होता है तो हाईएस्ट बिडर जो होता है उसको लेना चाहिए जो टेंडर के हिसाब से, लेकिन यहाँ देखा जाता है कि बार बार टेंडर होता है, हाईएस्ट टेंडर वाला उसका 20,000 30,000 में सिक्योरिटी मनी खत्म हो जाता है और उसके बाद वो पार्किंग दिन पे दिन चलाते रहता है, लेकिन कॉर्पोरेशन उसका पैसा वसूल नहीं करता। जो एग्जिस्टिंग पार्किंग चला रहा है वो लोग, ये बार बार ऐसा ही हो रहा है। इस महीने का इस फरवरी में भी हुआ, लेकिन अभी तक देखा जा रहा है कि पैसा कॉर्पोरेशन में सब पार्किंग का जमा नहीं हुआ। मेरे पास जो खबर है वो 2 पार्किंग का पैसा जमा हुआ है, पार्किंग नंबर 4 और पार्किंग नंबर 5 का। बाकी जो पार्किंग टेंडर हुआ था उसका पैसा जमा नहीं हुआ। तो जब उसका जमा नहीं हुआ, पहले का बोर्ड में ये भी देखा गया है, उससे पहले का बोर्ड में भी ये देखा गया है कि यदि पैसा जमा नहीं होता है तो कॉर्पोरेशन अपना अंडर में ले लेती है, यानी कि स्टाफ वही रहता है, कॉर्पोरेशन के लोग जाते हैं, टिकट देते हैं और स्टाफ चलाता है और कॉर्पोरेशन में पैसा आता है तो वो कॉर्पोरेशन का खाते में पैसा जाता है। लेकिन अभी पूरे तरीके से इनलीगल तरीके से कई एक पार्किंग चल रहा है, उसी के लिए हम लोग यहाँ पे मेयर साहब को बोलने के लिए आए थे। उन्होंने डिप्टी मेयर साहब को बुलाया, डिप्टी मेयर साहब ने बोला कि पार्किंग का सबका पैसा जमा हो गया। देखा गया तो 2-3 पार्किंग का पैसा जमा हुआ, बाकी पार्किंग का जमा नहीं। हम लोग का डिमांड है कि चाहे तो अगर वो लोग पैसा जमा नहीं कर रहा तो भाई पार्किंग उसके हाथ से हैंड ओवर लेके कॉर्पोरेशन चलाए। पैसा पब्लिक का टैक्स पैसा जो है रिव्यू के B2G बास्केटबॉल प्रीमियर लीग सीजन 1 का समापन समारोह एक यादगार अवसर बन गया। गुरु नानक नगर बास्केटबॉल कोर्ट में आयोजित इस समारोह में आसनसोल के हर कोने से खिलाड़ी, उनके परिवार और खेल प्रेमी एकत्र हुए। यहाँ का माहौल उत्साह और जोश से भरा हुआ था। खिलाड़ियों की प्रतियोगितापूर्ण भावना और दर्शकों के समर्थन ने इस कार्यक्रम को और भी रोमांचक बना दिया। समारोह के मुख्य अतिथि श्री अमरजीत सिंह भराधा ने इस भव्य आयोजन को अपने उपस्थिति से महकाया। उन्होंने अपने संबोधन में खेलों के महत्व पर प्रकाश डाला, विशेषकर यह बताते हुए कि कैसे खेल समाज को एकजुट करने का कार्य करते हैं। उनकी प्रेरणादायक बातें सभी के दिलों में गूंज उठीं और युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इस स्वर्णिम क्षण का संचालन कर रहे श्री गौतम झा और ऋषि अग्रवाल का विशेष धन्यवाद किया गया। उनकी मेहनत और दक्षता ने इस आयोजन को सफलतापूर्वक संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके समाज सेवा के प्रति समर्पण और नेतृत्व ने आज के युवाओं के लिए एक नए आदर्श को प्रस्तुत किया। समापन समारोह में प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा की गई, जिसने उपस्थित दर्शकों में जोश का संचार कर दिया। मिक्स्ड जूनियर कैटेगरी में श्रेष्ठ नगर ओडिसी सोसाइटी ने विजय प्राप्त की, जबकि सीनियर गर्ल्स कैटेगरी में सुगम पार्क सोसाइटी और सीनियर बॉयज कैटेगरी में बर्नपुर बास्केटबॉल ट्रेनिंग सेंटर ने अपनी प्रतिभा से सभी को प्रभावित किया। आयोजक संस्था बैक टू ग्राउंड ने सभी खिलाड़ियों, प्रायोजकों और समर्थकों का दिल से धन्यवाद किया। उनका समर्थन और सहयोग है जिसके चलते यह पहला सीजन इतनी सफलता से संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम ने न केवल खेल के प्रति लोगों में उत्साह जगाया, बल्कि समुदाय में एकजुटता और सहयोग की भावना को भी प्रबल किया। इस प्रकार B2G बास्केटबॉल प्रीमियर लीग ने अपने पहले सीजन में न केवल खेल को लोकप्रिय बनाया, बल्कि युवाओं को अपने सपनों की तरफ बढ़ने का एक मंच भी प्रदान किया। समारोह की यादें और जैसे जैसे अगला सीजन नजदीक आएगा, यह निश्चित है कि उत्साह और बढ़ेगा। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, हमारे यहाँ गुरु नानक नगर में गुरु नानक मॉडल स्कूल जो हमारा CBSE के पैटर्न पे चलता है, वो यहाँ पर स्थित है। तो बैक टू ग्राउंड B2G बोल के ग्रुप है जो NGO टाइप का है, जो वॉलंटरी सर्विस इनकी है। इसमें बड़े अच्छे लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े पदों में हैं सरकारी, जो बच्चों को एक स्पोर्ट्स की तरफ खींचते हैं। और 2 साल से उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी 2 साल पहले कि ये जो आपका एरिया है इसको आप बास्केटबॉल ट्रेनिंग पर्पस के लिए हम लोगों को अलाउ करिए। तो कमेटी ने पास करके उस टाइम इनको अलाउ किया। उसका नतीजा आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि आज शहर की 12 या 14 टीमें अलग अलग एरियाज़ की, जेनेक्स की, सुगम पार्क की, सृष्टि नगर की, मुर्गासोल की और कई एरिया के इन्होंने बच्चों की टीमें तैयार की हैं, जिनका ग्रैंड फिनाले आज जाके गुरु नानक नगर कॉम्प्लेक्स में कंप्लीट हुआ।
इससे बेनिफिट क्या है? एक तो हम बहुत खुश हैं कि हमारे प्रॉपर्टी में गुरुद्वारा साहब की जगह में आके ये कंपटीशन हुआ है। इससे आसपास के बच्चों को एक नई सीख मिलेगी, स्कूल के तरफ अट्रैक्शन अच्छा मिलेगा कि यहाँ स्पोर्ट्स और हो रही हैं, यहाँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो रही हैं। प्लस ये एक नॉन प्रॉफिट काम है, इसमें कोई प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, तो इसके लिए भी क्योंकि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी खुद एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है कि हमारी कमेटी ने इस चीज़ को प्रमोट करके बढ़ावा दिया है। और बाकी मैं आप लोगों को एक और चीज़ की जानकारी दूंगा। स्कूल कमेटी ने अंडर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में हमारा एक पूरा नया, अगर आप कैमरा को ऊपर दिखाएंगे, हमारा एक पूरा का पूरा नया फ्लोर ऊपर तैयार हुआ है, जिसमें 6 नए क्लासरूम CBSE अप्रूव्ड साइजेस के, प्लस टॉयलेट्स फॉर बॉयज़ अलग, गर्ल्स अलग, सारा सेटअप तैयार होकर रेडी बैठा है, जो मेरे को लगता है कि मैक्सिमम 1 महीने में ओपन हो जाएगा। इससे हम लोगों को और ताकत मिलेगी, क्लासेस और बढ़ेंगी, बच्चे और आ सकेंगे, और जितनी बच्चों की गिनती बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उतना ही सोशली भी बेस्ट होगा।